Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from Dips Kurulbag. In today's lecture, we are going to do the Geography, Chapter 5, Agriculture and Introduction. This chapter, I forgot to make video on this chapter. This chapter belongs to July month syllabus. So, agriculture. First of all, we should know the meaning of agriculture. Agriculture means growing of crops in the field. So agriculture is one of the most ancient economic activity of human beings. It is the art and science of producing plant from the soil. Agriculture provides food, shelter, and clothing to human beings. The early men settled in communities after he started cultivation land and produce crops. These things we know. So we can say, what is an agriculture? Agriculture is a art and science producing plants from the soil, and that is known as agriculture. Some of the agriculture product cannot be consumed directly, thus they have to be processed. Processing involve various type of economic activities. We can classify the economic activities into following three categories, and these three categories are primary activities, secondary activities, and territorial activities. So on the basis of the use of the agriculture products, we have divided the products into three categories. So first is the primary activities. Primary activities involves the extraction and production of resources provided by nature. मीन्स कि नेचर से जिस नेचर से मिलने वाली चीज़ को हम उसको सेम उसी रूप में ही उसको निकालते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं. डेट इज़ नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़. लाइक एग्रीकल्चर में जैसे कि हम वी आर ग्रोइंग वीट, राइस, तो हम उसको ग्रो करके सेम उसी रूप में ही उसको साफ सुफ करके उसको सेम उसी रूप में ही वी आर यूजिंग इट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द प्राइमरी एक्टिविटी. फिशिंग, gathering, lumbering, and mining are some of the primary activities. Number 2 is the secondary activities. Secondary activities involves the processing of the products of the primary activities, like baking of bread, making of clothes, processing of vegetables, fruits, and meats. Some are the secondary activities. अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो है जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ से मिलने वाली चीज़ को हम उस पर प्रोसेस करके उसको न्यू रूप देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर से हम वीट लेते हैं. वीट को हम लोग पिसवा कर देन उसका आटा बनाकर ब्रेड बनाने की प्रक्रिया जो है, दैट प्रोसेस पूरा, दैट इज़ नोन है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है. दैट कम इन द सेकेंडरी एक्टिविटी. मेकिंग अ ब्रेड, मेकिंग अ चपाती, मेकिंग वेजिटेबल को बनाकर उसको प्रोसेस करके खाना बनाना, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. थर्ड इज़ टेरिटरी activities. Basically help the primary and secondary economic activity by providing services, transport, trade, insurance, and banking. These are the some territory activities. Territory activities are the activities, जैसे कि हमने प्राइमरी एक्टिविटी से एग्रीकल्चर से वीट उगाया, वीट को प्रोसेस करके हमने ब्रेड बनाई, ब्रेड बनाकर उसको मार्केट तक पहुंचाना, वो जो काम करना है. और ब्रेड बनाने के लिए जो हमने लेबर की ज़रूरत पड़ी, उस लेबर को पैसे देने के लिए हमें बैंकों की ज़रूरत पड़ती है. ये जो टेरिटोरियल हैं, ये टेरिटोरियल में आ जाते हैं कि जो हमें उनको फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अदर जो हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ में आते हैं. एग्रीकल्चर, द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. Agriculture is a primary economic activity which involves the rearing of crops and rearing of livestock. एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आती है. इसमें दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1 पे होता है राइजिंग ऑफ क्रॉप्स को उगाना, एंड रेयरिंग ऑफ
लाइफ स्टॉक यानी कि एनिमल्स को पालना, like cow, buffaloes, goats, sheep. These are the livestocks for their products. But half of the total population of the world is directly or indirectly engaged in the agriculture activities. Although India is progressing in manufacturing and services industries, more than 65% of our total population is dependent on agriculture. इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो यहाँ पर हमको सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, बट फिर भी इंडिया में कि 65% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है. सो नंबर ऑफ geographical, cultural and economic factors are jointly responsible for the growth and development of the agriculture in any part of the world. जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात आएगी, कल्चरल कंडीशंस की बात आती है और इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये तीनों फैक्टर्स जो हैं किसी भी प्लेस में, वर्ल्ड के किसी भी प्लेस में हो, वहाँ के एग्रीकल्चर पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं. अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती होगी तो वहाँ पे वीट नहीं उगेगी, वहाँ पे राइस हम उगाना पसंद करेंगे. जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा वो हो, फर्टाइल हो, लेस फर्टाइल हो, तो वहाँ पे हम मिलेट्स वगैरह को उगाने का करते हैं ताकि इजीली वो ग्रो हो जाती हैं, लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो हो जाती है. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस उस पर काफ़ी असर डालती हैं. वेयर एज कल्चर भी है, हमारे कल्चर भी डिपेंड करता है कि भी हम लोग वहाँ क्या इफेक्ट क्या हम वहाँ पे ग्रो किया जाएगा. इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं कि भी उस एरिया में कितनी मार्केट कितने पास में. एग्रीकल्चर तो है, मान लो लैंड बहुत फर्टाइल है, सब कुछ है, फैसिलिटीज़ हैं, बट मार्केट पास में ना हो, और मार्केट पास में नहीं होगी तो फार्मर अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा. तो इसका भी बहुत असर पड़ता है. जहाँ मार्केट पास में होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जल्दी होगी. तो ये सब फैक्टर्स जो हैं एक एरिया में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं. सो द डिपेंड लार्जली ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन. सो इसको हम इन्वायरमेंटल कंडीशन भी कह सकते हैं. द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर involves plugging of land, sowing of seeds, irrigation the field at a appropriate time, and harvesting the crop. The method of farming have undergone several changes with the growth and development of science and technology. आजकल प्रोसेस तो वही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, बिकॉज कि एग्रीकल्चर में भी यूज़ करने साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है. तो इसके कारण इन सब में प्रोसेस में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं. द जोग्राफिकल फैक्टर helpful in the agriculture are suitable land, mostly leveled land is preferred, fertile soil and proper climate. These are the geographical factors which affect the agriculture of a place. Whereas the economic factors includes the availability of enough and cheap labor, an adequate transport facility for sending goods, and suitable market and storage, and availability of farms inputs such as seed, fertilizers, machinery, etc. These are the economic factors which affect the agriculture of an area. Agriculture or farming can be developed as an industry which involves input, operation and outputs. The main inputs can be seeds, fertilizer, irrigation, water, machinery and labor. The important operation involves are plugging, sowing, irrigation, wheeling, harvesting, whereas output is from the system of rising crops and livestock includes crops. Crops are raw foods or raw material, wood, dairy product, meat and poultry products. These are the output. So एग्रीकल्चर में भी 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, ऑपरेशन एंड आउटपुट. इनपुट में हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले लैंड होनी चाहिए, देन सीड्स होने चाहिए हमारे पास में. सीड्स के बाद में सीड्स को उगाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वो होना चाहिए हम, या वो भी प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए. उसके बाद में हार्वेस्टिंग करने के लिए होना चाहिए, फिर मशीनरी होनी चाहिए, फिर उनके लिए फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है. ये इनपुट्स होते हैं. वेयर एज
चीप लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है कि भी काम करना है, हर एक आदमी से तो होगा नहीं, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो चीप लेबर का भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन में होता है कि भी उसको प्रोडक्ट उसको खेतों को जोतना, जो खेतों को जोतना, बीज डालने, बीजों को खेतों को में पानी देना, ये सब ऑपरेशन होते हैं, जिसके बाद में ही खेत फसल उगती है। उसके बाद में आउटपुट आता है फसल का तैयार होना, दैट इज़ द आउटपुट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Till then, bye. Stay home, stay healthy, and see you very soon. Thank you very much.